हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। तो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। और तो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। So without wasting time, let's start. Okay, so now let's start with the model which we are going to do today in this video. And our model is there too. There too. Now, like, you might be wondering that why am I starting with the model there too? There are other, you can say, the most common ones which we can start with. So, I would like to tell you that हमने इससे पहले, like, I am making a series on models जिसमें कि अभी तक we are done with can, could, may, might, must, shall, should, ought to, need to, dare to, which we'll be doing today. Got it? And if you haven't watched those models, like the videos of those models, then you can just go watch them first and then you can come to this one. Because it's important to learn all the uses of models and to learn all the types of models. You can just go start with the first one and then you can do it in sequence and you can learn then see this one. Got it? Okay. So now let's see that what does this model means. जब भी हम हिंदी में बोलते हैं ना, हिम्मत मत कर लेना इस चीज की, हिम्मत होना, साहस करना, तो ये सारी चीजों का, लाइक, जब भी हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में इन्हें यूज करना हो, वी यूज द मॉडल देयर टू। हिम्मत होना, साहस करना, फॉर ऑल दिस वी यूज नीड देयर टू। गॉट इट? So meaning is that dare to is used to talk about courage, challenging authority, or rhetorical questions. तो इसमें क्या होता है कि इन सारी जगहों पे वी यूज आर मॉडल देयर टू। कौन कौन सी जगहों पे? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट करेज, हिम्मत की बात करें कि मुझ में ये करने की हिम्मत है, तुम में ये करने की हिम्मत नहीं है, होना, ना होना, इन सारे करेजेस के लिए वी यूज डेयर टू। नाउ द सेकंड वन इज चैलेंजिंग अथॉरिटी, किसी को चैलेंज करना कि ये कर मत देना, ठीक है, आई एम जस्ट चैलेंजिंग यू। सो चैलेंजिंग अथॉरिटीज में भी हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? वी यूज देयर टू। ओके, द नेक्स्ट इज rhetorical questions. Do you have any idea what are rhetorical questions? See, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका, जो ये क्वेश्चन तो होते हैं बट इन रिटर्न हमें इनका आंसर नहीं चाहिए होता है, इनके आंसर की कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, if I say, do it look like I care? See, the answer is obvious that no, but still I am putting a question. Do it look like I care? ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, if I say, isn't life beautiful? So, see, the answer, I'm expressing a feeling or emotion. So, I don't expect an answer that, yeah or no. No, I don't expect any answer. Okay? But rhetorical questions are those jinke, like, you don't need any answer to them. They are, can say that, mm, they are just the questions without answers. That's it. Okay? So, in सारी चीजों के लिए we use our model there too. Now let's see each and every single use of this particular model. Along with examples, we'll see each and every use in detail. So let's start with the first one. Uses of dare to, the number one is courage. Courage, हिम्मत, साहस। courage के लिए हम कैसे dare to use करते हैं? When someone dares to do something risky, ठीक है, जब कोई किसी रिस्की काम को करने की हिम्मत करता है, ठीक है, when someone is like risk, जब कोई रिस्क ले रहा है कुछ काम करने के लिए, so that is, at that point we use dare to. Let's see one example जिससे कि it will become more clear to you. So he dares to speak the truth. हमें सच बोलने की हिम्मत है, हमें बहुत बार बोलना होता है कि तुम में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तुम में सच बोलने की हिम्मत है, कुछ भी। we have to speak like this, what we can say, he dares to speak the truth, like, which means कि उसमें सच बोलने की हिम्मत है। And we will frame the sentence, he dares to speak the truth
he dares to speak the truth. ठीक है, let's see the next example. She dared to challenge unfair decision in the court. तो उसमें हिम्मत थी कि वो चैलेंज करे एक अनफेयर डिसीजन को कोर्ट में। तो उसके अंदर हिम्मत थी किस बात की? कोर्ट में अनफेयर डिसीजन को चैलेंज करने की। शी वॉज हैविंग द करेज। ठीक है, तो अगेन हमने जब भी हमें किसी चीज की हिम्मत दिखानी हो, साहस दिखाना हो, और इन इंग्लिश यू कैन से करेज दिखाना हो, so for that what do we use the model dare to. न can, न could, न shall, should, no nothing. ठीक है, we only have to use dare to जब भी हम करेज की बात कर रहे हो। So this was the first use of dare to. What else are the uses of dare to? Let's have a look at them. The second one is dare, okay, defying authority. ठीक है, किसी भी अधिकार को चुनौती देना। ठीक है, डिफाइंग अथॉरिटी मीन्स किसी भी अधिकार को चुनौती देना। व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन्स दैट व्हेन गोइंग अगेंस्ट पावर, जब कोई भी पावर के अगेंस्ट जाता है, तो फॉर दैट आल्सो वी यूज डेयर टू। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल, हाउ कैन एग्जांपल, हाउ डेयर यू एंटर माय रूम विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द अथॉरिटी इज गेटिंग डिफाइड। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया? डेयर टू यूज सप्लीमेंट परमिशन की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर आने की? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू एंटर माय रूम विदाउट माय परमिशन। ठीक है, तो अगेन कोई भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी को हम लाइक डिफाई कर रहे हो, तो फॉर दैट आल्सो वी यूज डेयर टू। ठीक है, नेक्स्ट इज नो वन डेयर टू क्वेश्चन डिक्टेटर्स रूल। किसी ने डिक्टेटर के रूल को क्वेश्चन नहीं करा। ठीक है, nobody dared to question the dictator's rule. Got it? तो अगेन हमारा क्या था? अथॉरिटी अगर डिफाई हो रही है, for that also we have to use dare to. अथॉरिटी अगर नहीं डिफाई हो रही है, for that also we have to use dare to. तो हमने भी कर लिया कि for the courage we use dare to, for the defying authority we use dare to. Now let's see the third one. The third one is the polite offers. शिष्ट प्रस्ताव, used in old-fashioned English. Okay, so this I don't think that you have to put a lot of focus over this one, क्योंकि ये ज्यादातर ओल्ड इंग्लिश में हम यूज करते थे, बट नाउ even when you'll see the examples, you'll see okay, nobody says like it this, like nobody says like this now. So let's see कि कैसे हम dare to का यूज करते हैं for the polite offers, जब हमें किसी को politely कुछ ऑफर करना हो। Okay. Dare I ask a question? That means कि क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ एक क्वेश्चन पूछने की? Which looks very odd, but in the old English we used to speak like this. So you should know कि अगर आपको कोई polite question करना है, तो for that also you can use dare to. ठीक है, वो गलत नहीं होगा इंग्लिश में, वो आप बोल सकते हो, but nobody uses it right now. Okay. Dare we hope for a better future despite the current crisis? तो क्या हम एक बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी करंट क्राइसिस, हमारी करंट प्रॉब्लम्स हैं उसको इग्नोर करके? अगेन दिस इज व्हाट इज दिस, एनी आइडिया? सो या दिस इज लाइक वी आर जस्ट हैविंग अ पोलाइट ऑफर, हम कुछ पूछ रहे, वी आर जस्ट आस्किंग समवन इन अ वेरी पोलाइट मैनर। सो इसके लिए हमने क्या यूज करा? डेयर टू। लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस वन पॉइंट, बिकॉज यू विल नॉट बी यूजिंग इट इन इंग्लिश। ठीक है, अब इसकी जगह बहुत दूसरे मॉडल्स हैं जिनको आप यूज करके अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू यूज डेयर फॉर द पोलाइट ऑफर्स। ठीक है, बट इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ डेयर, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड इन वन ऑफ माय स्लाइड। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, मनाही के लिए डरना। ठीक है, व्हेन समवन डज नॉट हैव करेज, तो हमने एक तो पढ़ा कि करेज के लिए हम यूज करते हैं डेयर टू। सेकेंड इज कि अगर किसी में हिम्मत नहीं है, फॉर दैट आल्सो वी यूज डेयर टू। हिम्मत होने के लिए भी डेयर टू, हिम्मत ना होने के लिए भी वी यूज डेयर टू। गॉट इट? हिम्मत ना होने के लिए व्हाट वी यूज डेयर टू। लेट्स सी विद एग्जांपल। ही डज नॉट डेयर टू आर्ग्यू विद हिज बॉस। उसमें हिम्मत नहीं है अपने बॉस के साथ आर्ग्यू करने की। अगेन हिम्मत होने के लिए भी डेयर टू, हिम्मत ना होने के लिए भी डेयर टू। गॉट इट? The next one is dared not to express her real opinions in front of the council. उसमें हिम्मत ही नहीं है कि काउंसिल के सामने वो अपने रियल ओपिनियंस को कन्फेस कर पाए, अपने रियल एक्सपीरियंस, रियल
ओके, रियल ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाए। सो अगेन, हिम्मत होने के लिए डेयर, हिम्मत ना होने के लिए भी डेयर टू। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो ओके, द फिफ्थ यूज इज चैलेंजिंग समवन। अगर हमें किसी को चुनौती देनी हो, हमें किसी को चैलेंज करना हो, फॉर दैट आल्सो वी यूज आवर मॉडल डेयर टू। ठीक है, तो किसी को चुनौती देना, व्हेन प्रोवोकिंग समवन, जब हम किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं, फॉर दैट हमने क्या यूज कर दिया, हमने डेयर टू यूज कर दिया। जैसे कि आई डेयर यू टू ट्राई दिस स्पाइसी फूड, आई एम चैलेंजिंग यू टू ट्राई दिस स्पाइसी फूड, एंड दैट्स व्हाई मैंने क्या यूज करा, चैलेंजिंग की जगह आई हैव यूज्ड डेयर देयर। ठीक है, नाउ इफ यू थिंक यू आर ब्रेव, आई डेयर यू टू स्पेंड अ नाइट इन द हॉन्टेड हाउस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि एक रात घुसकर एक नाइट हॉन्टेड हाउस में रुक के दिखाओ। तो अगेन चैलेंज की बात आ गई, तो हमने क्या यूज कर दिया, डेयर टू को यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, सो दैट्स इट, दीस ऑल वर द यूजेस ऑफ डेयर टू। सो हमारा पहला यूज क्या था, कोई भी करेज की बात हो, फॉर दैट वी यूज डेयर टू। नेक्स्ट वन वाज, अगर कोई पोलाइट ऑफर है, दैट वाज लाइक दैट, बेसिकली वी यूज्ड टू यूज दिस इन द ओल्ड इंग्लिश, नॉट नाउ। द थर्ड वाज, अगर करेज नहीं है, वी डू नॉट हैव द करेज, फॉर दैट आल्सो वी यूज डेयर टू। एंड व्हेन वी आर चैलेंजिंग समबडी, फॉर दैट आल्सो वी यूज डेयर टू। आई होप कि आपको डेयर टू के सारे यूजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। Still, if you're having any of the doubts, feel free to ask me in the comment section below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.